everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. And today is 2nd August, that is Wednesday. आज Wednesday है, 2nd August है. And we are here with the Hindu analysis of Wednesday. So if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है, आप एक बार comment में लिख देना, yes sir, you're audible. Okay, so we'll be discussing about it. So some unfortunate incident have happened and all. So first of all, there is a question for you. और ये एक report है. I mean, this is about the Supreme Court judgment or Supreme Court about Manipur and all. We'll be discussing it in detail. Okay, first of all, there is a question for you. In fact, I have taught this in paid classes. So this is the question. Please answer it in the live chat. Promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practice derogatory to the woman, dignity of women. So this is mentioned where? Your options are fundamental rights, fundamental duties, DPSP, Article 1. Where do you find this statement mentioned? ये जो quote है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये question है. I'm waiting for the answers. Yes, good morning everyone. Good morning guys. You are supposed to tell me where do you find this statement mentioned. I have taught in the paid classes. ठीक है. So I'm expecting you all to answer it. बताइए. And which part of the Indian Constitution? कौन से part में ये mentioned है? There are, I hope you are aware, 25 parts in the Constitution. We have taught these things. Okay. Yes. देखो ये हाँ, very good. So option yes, Pranjali, Priya, Dhananjay, Jagriti, Sahajalin, Kaur, Alia, Aditya, you all are right. Yes, Dhananjay, yes. The right answer is fundamental duties. Talk about it. It means it is the duty of every citizen. This is every citizen's duty. Citizen of this country to promote harmony, spirit of common brotherhood amongst all the people of India. Transcending means irrespective of religion, language, region, section, diversities and all. And to renounce practices. Renounce मतलब reject the practices which is against the dignity of women. इसको भी मैंने explain किया था, like you might have seen in village area something like witchcraft. They killed a female in the name of that she is a dine or something like that. ये सब मैंने पढ़ाया है. Yes. So, I mean, these are the things mentioned in fundamental duties. Yes, you can see it here. This is in front of you. देखो ये fundamental duties I have taught it, promote harmony, spirit of common brotherhood and all, है ना? ये मैंने पूरा explain किया था. So, just have an idea about it that this can be asked in exam. तो इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए. Okay, first page में there was another article, Manipur status report on FIR show there is no law and order. So basically Supreme Court was not happy with the Manipur police and all of actually doing. I mean the Supreme Court has said that the police has not done proper investigation and all. मैंने कल भी discuss किया था कि they want that 6523 FIRs have been filed. So they want the complete breakdown of it. मतलब कि how, I mean I mean these FIRs are for which case and all. So give us detail. That is what the Supreme Court has said and all. Okay, this shows that from beginning of my till end there was no law and order. So basically the Supreme Court was the judge was slightly angry on this issue and all. Okay, so 3-judge bench asked Manipur government represented by Solicitor General Mr. तुषार मेहता. So I hope you are aware, इनका नाम कई बार आता है, Solicitor General Mr. तुषार मेहता. So there is a question for you. अच्छा एक दो ये सब टर्म है, ये सब पता है आपको? प्राइमा फैसी का मतलब क्या होता है? दिस इज अ होमवर्क. इसको जाके फाइंड आउट करो. व्हाट इज दिस टर्म प्राइमा फैसी का क्या मतलब होता है? इट्स अ होमवर्क. ठीक है, गो एंड फाइंड आउट. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द डैश कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ इंडिया, सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बताइए. Mr. तुषार मेहता is actually the Solicitor General of India. कौन सी बात सही है? Solicitor General of India से related. इसी तरह का not exactly this but similar question was asked in ALET कि which of the following is not a constitutional body. इस तरह क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए, you should be knowing these things. और सबको लाइक बटन प्रेस कर दीजिए guys. We are seeing only 9 likes. 25 is watching, so everyone please press the like button.
यस वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने आंसर किया, मानू, प्रांजलि, सहजलीन, प्रिया, आलिया, धनंजय, हिरम, मोहम्मद अर्श। तो ये सब मैंने पढ़ाया है। देखो ओनली अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट व्हिच इज मेंशन इन आर्टिकल 76, ठीक है। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? बताइए। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज एक्चुअली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर ऐसे टेक्निकली कोई टर्म होता नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाएगा सो यू विल बी रेफरिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जुडिशियल ऑफिसर मींस जज के बारे में पूछा जा रहा है। सो द सीनियर मोस्ट जज इन इंडिया इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसे टेक्निकली फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर लिखते नहीं, लेकिन अगर लिखेंगे तो यू विल हैव टू रेफर टू सीजेआई, ठीक है। सेकंड सीनियर मोस्ट लॉयर इज एक्चुअली द सेकंड लॉ ऑफिसर, यू कैन से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये मैंने पढ़ाया भी है ना। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफिसर इज अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सो फर्स्ट लॉ ऑफिसर इज एजी अटॉर्नी जनरल मिस्टर आर वेंकटरमणी। आपको पता है तो आप लोग जानते हो, गुड, वेरी गुड, है ना। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम्स। ओके, यस, ओके। फर्स्ट पेज में सेकेंड हाफ में एक आर्टिकल थी, पटना हाईकोर्ट फाइंड्स कास्ट बेस्ड सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट परफेक्टली वैलिड, अलाउज रिजम्पशन। ये भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते, because this is also slightly important, caste based survey and all. So first of all, there is a question for you, please answer it, then we'll be discussing it. When was the last caste based census happened, whose result is in the public domain? Sorry, your options are 2011, 1931, 1954, 1979. Okay, सो आखिरी कास्ट बेस्ड सेंसस कब हुआ था जिसका रिजल्ट हमारे पास है पब्लिक डोमेन में? कास्ट बेस्ड सेंसस का मतलब क्या होता है बताते हैं। जैसे व्हेनेवर अ सेंसस इज कंडक्टेड, इट इज बेस्ड ऑन बहुत सारी चीज निकाली जाती है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिलीजन इज देयर, कि कितने लोग कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एससी एसटी का जनरली निकलता है, बट कास्ट का नहीं निकलता है जनरली, कि विच कास्ट पीपल इज हाउ मच परसेंटेज। ये अभी तक मतलब रिसेंट ईयर्स में नहीं निकला है। कुछ लोग कह रहे 2011। Yes, Pranjali, Gauri, Sethi, Gauri, Pranjali, Bhavishya, you all are right. देखो, actually I know I got it. यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ये पहले देखो, कौन सा कास्ट बेस्ड सेंसस जिसका रिजल्ट पब्लिक डोमेन में कास्ट बेस्ड, वो 1931 का है। अब देखो, I'll tell you some hint. Whenever census happens, वो जनरली ऐसा होता है 1931, 1941, 1951. So first year of decade यहाँ पर होता है। तो ये दोनों तो you could have easily eliminated it, ठीक है। Now the confusion was this, so actually the right answer is B. I'll tell you. देखो, होता ये है कि 2011 also census talked about caste census, but the government has not released the data, caste data, ठीक है, ओके। और मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए कि पब्लिक डोमेन है जो है तो आखिरी 1931 का था। So after that, so almost it's almost 100 years back, or you can say 90, 97, 98 years back. We have seen this. Okay, so yes, Pranjali, yes, I'm repeating it because this is important now. So just have an idea. लेकिन अभी भी इंडिया लेवल पर since 1931 till now we have not seen caste based census. So many opposition parties have requested कि 2021 वाला caste census जो है आप caste based कराओ. But yes, this is Bihar government is doing at Bihar state level. This is not India level. I'm not saying it's India level, but state level Bihar government has planned to do it. So it was challenged in Patna High Court. Initially, Patna High Court stayed it. Stayed मतलब रोक लगा देना. But final judgment came in favor of it, and Patna High Court said that it is perfectly valid. There's nothing wrong in it, actually, in doing caste-based census. So maybe the one who has filed the petition, they might go to Supreme Court. Okay, let's see. But right now, this is the judgment, and you are supposed to know it. है ना? Division bench मतलब two judge bench को generally division bench कहते हैं. Division bench of Patna High Court said that yes, the Bihar government can go for it. Okay, yes. So just have an idea about it. So got a boost on Tuesday with Patna High Court dismissing all petition challenging the Bihar government's caste-based census and all. Okay, ठीक है. So just have an idea. Yes. Now the next one is एक line है. Who said this? Because he's in news. Actually, quote इधर जाएगा उधर हो गया. कोई बात नहीं. Swaraj is my birthright and I shall have it. ये ऐसे होगा, comma. This has been said by whom? Your options are Mahatma Gandhi, Dadabhai Naoroji, B.G. Tilak, Lala Lajpat Rai. What is the right answer to this question? बताइए.
किस व्यक्ति ने ये बात कही थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा? स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट एंड आई विल. Swaraj actually, when during the time of British, Swaraj actually is referring to a sort of self-independence, है ना? Yeah, independence कह लो या self-rule, whatever you can say. Yes, Mr. बाल गंगाधर तिलक, option C, धनंजय, आलिया, गौरी, प्रांजलि. क्यों न्यूज में? Why he is in news? कोई तो वजह होगी. Yes, आदित्य, सहजलीन, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. सहजलीन कौर, नितिका, प्रांजलि, गौरी, you all are right, हाँ. So there is a reason. Actually, someone has got Lokmanya Tilak Award recently, and it came in the first page, the Hindu newspaper. Your options are Sharad Pawar, Mr. Sharad Pawar, Mr. Uddhav Thackeray, Mr. Narendra Modi, Mr. Jagdeep Dhankar. अभी recently लोकमान्य तिलक अवार्ड किसी को दिया गया है. किनको दिया गया है ये अवार्ड? इसीलिए न्यूज में थे. Actually, Mr. Bal Gangadhar Tilak was famously called as Lokmanya. ओके, बताइए. लोकमान्य तिलक आई थिंक ट्रेन का भी नाम है ना? देयर इज अ ट्रेन आल्सो, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस समथिंग. यस, हाँ, गुड. प्रिया चवन, कुमकुम अंजना, मोहम्मद अर्श, प्रांजलि, प्रिया, मानु, you all right. PM Modi actually has got this award. Pawar looking on, PM Modi accepts Lokmanya Tilak Award. So Sharad Pawar, Mr. Sharad Pawar was present in on the dais. But actually the one who has got it is PM Modi. Okay, so just have an idea about it. That 41st Lokmanya Tilak Award has been given. Actually 1st August is actually on 1st August, as far as I remember, 1920. Mr. Bal Gangadhar Tilak died. So that is why you should have idea about it. Okay, so go and find out who gives this award. Which organization gives Lokmanya Tilak Award? ठीक है, कौन सी संस्था देती है? Find out कर जाके. ठीक है. Okay, so C is the right answer. हाँ, and why also, ये भी होमवर्क है. किस फील्ड में किस मकसद से दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है. इट्स अ होमवर्क, है ना? ओके, द नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 6 में एक आर्टिकल था. एक्चुअली कल भी आया था तो मैं मिस कर गया था, तो सोचा आज डिस्कस करा लो. पेज नंबर 6 में हियर इट इज. एक्चुअली आई होप यू आर अवेयर. देखो चंद्रयान 3 जो है इसमें आगे देखो, इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स ट्रांस लूनर इंजेक्शन ऑफ चंद्रयान 3. तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग जनरली बिलीव करते हैं कि अर्थ है, यहाँ से ऐसे टेक किया और यहाँ मून में जाके लैंड कर गया. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. सो नेवर सैटेलाइट डू नॉट गो लाइक दिस कि स्ट्रेट चला गया. सो इट ऑलवेज गोज लाइक दिस. ठीक है, ऐसे 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 करके देन, ठीक है, मतलब या ऐसे ऐसे घूम के फिर ऐसे 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 जाता है. ठीक है, इट गोज लाइक दिस ओनली. ऐसे नहीं जा सकता कि डायरेक्टली यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया. इट्स नॉट लाइक दिस. देयर इज अ रीजन फॉर इट. ठीक है, फिजिक्स का रीजन है. ओके, सो ये जो यहाँ से यहाँ जो जाता है लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी. तो अब यहाँ पर आ गया भाई, ट्रांस लूनर इंजेक्शन का मतलब है कि यहाँ से निकल के एंड वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. मोस्ट लाइकली अगस्त के आई गेस लास्ट वीक में विल बी लिस्टिंग अ गुड न्यूज दैट इट विल, आई मीन द चंद्रयान 3 विल लैंड ऑन द मून. ठीक है, सो वी होप दैट, है ना, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए, इसी की वो बात कर रहे हैं. सो लेट्स स्पीक. देखो 23 अगस्त को एक्सपेक्टेड डेट टू टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस, यानी 20-21 दिन बाद. ओके, सो कीप ऑन फॉलोइंग इट बिकॉज ऑफ कोर्स दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Okay, before moving on guys, on 6th August at 11 AM in the morning we'll be having a scholarship test. If you qualify it, you will get up to 90% scholarship on this paid course. This is a test series for CLAT UG 2024. Then CLAT UG 2024 के लिए paid classes is there. We are running a crash course also. And then 2025 के लिए भी, if you are attempting next year, अगर आप अगले साल कोशिश करना चाह रहे हो तो you can go for that also. ठीक है. Okay, if you have any question regarding any course, you can call on this number. और अगर ये वाला टेस्ट पास कर जाओगे तो 90% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकता है. ओके, यस. हाँ, लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द एडिटोरियल्स. तो ये चारों एडिटोरियल है, ये सब मैंने बताया पहले भी. डेंजर्स इन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. तो एक्चुअली ये कि रिसेंटली डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन पर्सनल बिल एक्चुअली इज इन न्यूज. सो बेसिकली द ऑथर्स आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ दिस बिल. दे आर एक्चुअली क्वाइट क्रिटिसाइजिंग इट एंड ऑल. So let's see what they are talking about. First is they are saying digital data protection bill in parliament has been introduced. The final draft is shrouded in secrecy. So basically they are actually criticizing it. The final last week opposition members walked out of this meeting, submitted dissent note. Dissent note means opposition opposing the view or opinion.
So they actually, the opposition member opposed the bill and all. Okay, so on November 2022, Ministry of Electronics and Information Technology publicly circulated a draft of the bill. So it made it public that we are going to come up with this, and it was fraught with problems. तो मतलब author ये कह रहे हैं कि there are a lot of problems in this bill. That is what they are talking about. So data protection bill includes a provision to amend RTI. Actually इसी पर बहुत criticize किया authors ने. मतलब actually क्या है? I hope you are aware RTI was passed in 2005, which actually empowers common man. इतना तो पता होगा. मतलब common man can ask questions from government department and all, है ना? Government से question पूछ सकता है and all, and the government has to answer it and all, है ना? So in fact Supreme Court in previous judgments have said that yes, right to information is fundamental rights and all. ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने एक और जगह यहाँ कहा था कि the one who have done willful defaulters का डिटेल पब्लिक में होना चाहिए. मतलब willful defaulter मतलब कोई जैसे नॉन परफॉर्मिंग है, one who has deliberately not given back the loan. कोई बंदा उसने कर्जा लिया खूब हैवी अमाउंट और लेके चला गया या भाग गया, उसने कर्ज वापस नहीं किया, तो उसके बारे में जनता को पता होना चाहिए. सिटीजन का राइट है कि उसके नाम के बारे में कौन बंदा है, उसके डिटेल के बारे में पता होना चाहिए लोगों को. दैट यस द पीपल हैव, दीज आर द पीपल्स हु हैव डेलिबरेटली नॉट गिवन बैक द लोन. डिफॉल्टर्स मतलब वही होता है, विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझ करके कर्जा नहीं लौटाना. ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. Experience of use of RTI in India has shown that if people, especially poor and marginals, are to have any hope of obtaining benefits of government scheme and welfare, they must have access to relevant granular information and all. ठीक है, तो कई बार RTI की मदद से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है which is helpful actually in actually getting to know about government schemes, welfare scheme and all. Okay, so they are giving some example like public distribution system control order recognizes the need for putting out detail of ration card holders and record of ration card shops in public domain to enable public security and all. हाँ, जैसे अगर आप RTI फाइल किए कि आप हमको बताओ कि कितने PDS शॉप हैं मेरे जिला में, how many PDS shop are there, and please tell me the location of it so that I can verify whether those PDS shop is working or not, how many of them are working, ठीक है, and how many of the PDS shop, I mean, is there any survey conducted by the department to verify whether PDS shop is working fine or not. तो RTI एक तरह का accountability mechanism है. ये आप समझते हो ना, answerability, accountability मतलब होता है sort of answerability, ठीक है. तो पहले जो होता था, so government is accountable to whom से कहते हैं ना, तो accountable to जैसे होता है लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, है ना. अब सिटीजन को भी है with the help of RTI. So accountability is actually after the RTI, even the citizens can ask from the government department कि tell me about this, that and all. ठीक है, तो इसीलिए अब accountability mechanism is considered as much better after RTI and all. इसी सब यही चीज बता रहे. हाँ, उसमें लेकिन कुछ exceptions भी हैं. So there are exceptions in RTI. जैसे बहुत सारी चीज है ना, तो आप जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं, किसी की प्राइवेसी के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कोई ट्रेडमार्क, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, ठीक है, किसी के पर्सनल लाइफ से एंड ऑल. सो पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जाम्प्ट. सो यू कैन नॉट आस्क पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफिसर इन अ डिपार्टमेंट. ये आप नहीं पूछ सकते हो. कोई ऑफिसर है किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो उसके आप पब्लिक ड्यूटीज के बारे में पूछ सकते हो, है ना, कि वॉट एवर ही हैज डन इट. ओके, बट यू कैन नॉट आस्क हिज पर्सनल लाइफ. और मैं जाहिर से बात है वो क्यों पूछोगे, वो पब्लिक डोमेन में थोड़ी होगा, वो तो RTI में नहीं आना चाहिए ना. सो दैट इज व्हाई इट इज गिवन इन द एक्सेप्शन दैट यस यू कैन नॉट आस्क एनीवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन. दिस इज अ एक्चुअली एक्सेप्शन टू दैट. लेकिन अब इसमें हुआ ये है कि the recent bill actually expand its definition, और personal information की जगह लिखा है expand its purview and exempt all personal information from disclosure. तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि all personal information का मतलब है कि might be, it can be the reason to deny a lot of RTIs. ठीक है, अब इसमें तो बहुत सारे मतलब ये है कि they are saying कि this can be misused and all. That is what their opinion is, the author's opinion. ठीक है, कि हो सकता है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म वीक हो जाए. दैट इज व्हाट दे आर क्रिटिसाइजिंग इट. यही सब चीजें. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एनी डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज टू कर्टेल द मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा इंक्लूडिंग फाइनेंशियल फ्रॉड. तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ का मेन मकसद क्या है कि डेटा रिवील नहीं हो, किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं है ना. दैट इज व्हाट द मेन आइडिया इज. ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे डिटेल में, इतना डिटेल नहीं जाना है. यू आर नॉट सपोज टू गो वेरी मच इन डिटेल, एकदम डिटेल बाय डिटेल नहीं जाना. कुछ चीजें पता होनी चाहिए. जैसे RTI की बात कर रहे हैं, ठीक है. So RTI Act when it was formed, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इंफॉर्मेशन कमीशन.
The job of Information Commission is to ensure that RTI Act should be implemented properly. तो उसमें एक Chief Information Commissioner होते हैं and there are other Information Commissioners and all. ठीक है, so just have an idea about that. तो ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. इतना क्रिटिसिज्म जो बता रहे हैं एकदम डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट, उतना डिटेल नहीं जाना है. ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर इट, है ना. तो वो बता रहे हैं कि हाँ बहुत सारे केसेस में आर्बिट्रेरली एग्जेम्प्ट कर सकते हैं. दे विल नॉट आंसर मेनी क्वेश्चंस गिविंग द एक्सक्यूज. मतलब वो बोले कि ये सब एक्सक्यूज बन सकता है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. ओके, सो दे आर सेइंग रिजल्टिंग इन इमेंस वायलेशन ऑफ सिटीजन प्राइवेसी एंड ऑल. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. Further, to meet objective of protecting personal identity, it is critical that oversight body set up under legislation to be adequately independent and opt. ठीक है. फिर ये एक्चुअली हाँ देखो ये होता है कि गवर्नमेंट से ऑटोनॉमी होने की बात. So जैसे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड विल बी सेट अप. Okay, so they are saying कि when the data protection board is set up, it should be independent of the government. Autonomy होना चाहिए. Means the appointment and removal of the person should be independent of the government. The government's interference should not be there. ये वो बताना चाह रहे हैं. तो लोग कह रहे हैं कि नहीं है ये. So that is what they are saying. The authors are saying. ठीक है, so just have an idea about it. Empowered to impose fine up to 500 crore is bound to raise serious apprehension of it becoming another case parrot. तो इसके पास पावर है 500 करोड़ तक actually fine भी कर सकता है. It can fine up to 500 crore. But they are saying it might become another caged parrot. देखो मैंने बताया था caged parrot is a word used by Supreme Court I think in 2013 for CBI. मैंने बताया था ना बहुत पहले, कुछ दिन पहले, that Supreme Court has once said, a judge of Supreme Court in I think 2012 or 13 said कि CBI is a caged parrot. So they are saying कि data protection board might become the same or something like that. Okay, so that is what their criticism is, the author's criticism is. ठीक है, so I think this much is crystal clear. So basically primarily they are actually criticizing this bill and all. इससे रिलेटेड कुछ चीज है. ये रूट जो इसका है वो राइट टू प्राइवेसी के अंदर है, डेटा प्रोटेक्शन बिल का. ठीक है, and I hope you are aware of right to privacy. It's a fundamental right under Article 21 judgment of Supreme Court is there. ये सब बता चुका हूं मैं, so that is why I'm not going in detail. फिर साइड में आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट इंडाइटमेंट रिमार्क्स ऑन मणिपुर द बीजेपी मस्ट रिप्लेस द सीएम. तो एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट हैप्पी विद द मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर पुलिस एंड ऑल. सो द ऑथर इज सेइंग दिस इज एन एडिटोरियल. सो ऑथरलेस एडिटोरियल, सो इट रिप्रेजेंट्स द हिंदू न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ओपिनियन. ये इनके एडिटर का ओपिनियन है यहाँ. ठीक है, so the editor's opinion is that the BJP should replace the chief minister, means the chief minister should resign. ये उन्होंने लिखा है. Okay, so I hope you are aware FIR, so much FIRs have been filed, and yes, on August 7th, the Manipur DGP has been asked to be present in the Supreme Court. Director General Police, DGP is actually the state police head. जैसे एक जिला का पुलिस हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड इज एसपी, है ना, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वी कॉल, है ना. कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग में डीसीपी कहते हैं उसको, डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस. जैसे अगर दिल्ली वगैरह में जाओगे तो डीसीपी वी कॉल इट एज. ओके, दिल्ली मुंबई में. बट जनरली अ डिस्ट्रिक्ट में, एक जिला में जो पुलिस हेड होता है उसको हम एसपी कहते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. जो पूरे स्टेट में पुलिस हेड होते हैं वी कॉल इट एज डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. ठीक है, उसके इक्विवेलेंट कमिश्नरेट सिस्टम में जैसे अगर दिल्ली में जाओगे सो इट विल बी कॉल्ड एज कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपी. सो पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली इज इक्विवेलेंट टू, यू कैन से मणिपुर डीजीपी एंड ऑल, है ना. सो व्हाट अबाउट डीसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. डीसी जो होता है देखो क्या होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है ना, सो डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं उसको हम कहते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ठीक है, ये कहते हैं कलेक्टर कहते हैं इसको, है ना. और पुलिस का जो हिस्सा होता है, पुलिस में जो हेड होता है उसको हम एसपी कहते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. ठीक है, ओके. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है. पूरे एंटायर स्टेट लेवल पे व्हेन वी टॉक, तो स्टेट लेवल पर जो पूरे हेड होते हैं, मतलब आईएएस के जो हेड होते हैं उसको हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं ना, चीफ सेक्रेटरी, सारे आईएएस ऑफिसर्स के हेड. ठीक है, सो डीएम इज एक्चुअली एन आईएएस ऑफिसर, एसपी इज एन आईपीएस ऑफिसर. ठीक है, और जो स्टेट पुलिस हेड होते हैं, जो आईपीएस जो स्टेट पुलिस हेड है पूरे स्टेट का, उसको हम डीजीपी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. ओके, ठीक है. डीजीपी कौन है आप एक बार चेक कर लेना, हु इज द डीजीपी ऑफ मणिपुर. ओके, सो ही हैज बीन आस्क्ड टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आई मीन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है ना. आई होप यू आर अवेयर. सो सम वीडियोस, अनफॉर्चुनेट वीडियोस एक्चुअली वेंट वायरल एंड ऑल. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस. सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर. That is what, है ना. So bringing perpetrators to book.
मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ punishing the one who is involved in crime, सजा दिलवाना जो उसने क्राइम किया है. दैट्स कॉल्ड bringing perpetrators to book is a tedious task, यानी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, because so much violence happen and also it's very difficult to punish, arrest those and punish it and all. इसी की बात देख रहे हैं. नहीं, आईजी हाईएस्ट पोस्ट नहीं होता है मानो. No, I think you are not correct. So देखो, actually it goes like this. Someone is asking, तो मैं बता देता हूँ. It starts like this. अगर आईपीएस की जो रैंक हो एसपी स्टार्ट होती है, then it goes डीआईजी, then above which is आईजी, above which is एडीजी, and above which is DGP, या डायरेक्टर जनरल या डीजीपी भी कह लो. It goes like this. So IG is here. It is not the highest post. Highest post is DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. ठीक है, which is in Delhi. इसको कमिश्नर के इक्वल होते हैं, कमिश्नरेट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस. ठीक है, so just have an idea. इसमें और भी बहुत सारा होता है, एडिशनल डीसीपी ये यहाँ पर आता है. ओके, just have an idea. ओके, चलो आगे चलते हैं. लेट्स मूव ऑन टू दिस वन. बस राइट टू इक्वालिटी, द व्हील्स ऑफ चेंज इन कर्नाटका. तो इसमें यह है कि देखो एक्चुअली एक गवर्नमेंट की स्कीम है, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो अब ये जैसे लोगों ने अपना दिखाया कि दिस इमेजिन अ सिटी, सो दे आर इमेजिनिंग कि दिस इज एक्चुअली द आइडिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल, दैट दे आर सेइंग कि एक्चुअली ये एक स्कीम है, शक्ति स्कीम. दे आर एक्चुअली प्रेजिंग दिस शक्ति स्कीम ऑफ कर्नाटक गवर्नमेंट, वेयर एक्चुअली फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस है. ठीक है, तो वो उसको प्रेस कर रहे हैं. ठीक है, so they are saying under this where women can travel for free on state buses, the aim is to make transport more accessible and safer for women. तो मतलब ये टारगेट है कि ज्यादा आसानी से महिला जो है वो बस पे जा सके, सेफ हो, एंड रिमूविंग स्मॉल कॉस्ट बैरियर्स. हो सकता है अगर गरीब घर की उनको प्रॉब्लम ना हो, दे कैन गो फॉर फ्री एंड ऑल. So that is what they are saying it. I mean, to ensure that they should financially independent, should not be financially dependent on spouse, है ना. तो ये वुमेन एम्पावरमेंट में एक और एस्पेक्ट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, है ना. Okay, so this is also an aspect of women empowerment, but it also beneficial to working women. It makes working outside the home more attractive. तो ये सब बात कर रहे हैं कि yes, maybe those women who are from the poor class, they can easily go transported from one place to another place for job purpose, है ना. कोई नौकरी मिल जाए आसानी से, उनके फाइनेंशियल हालत नहीं अच्छी हो तो बस से फ्री जा सकती हैं. That is what is being talked about. It help fight the gender stereotype and all. तो ये स्कीम, फ्री बस ट्रैवल स्कीम फॉर वुमेन इन कर्नाटक, शक्ति स्कीम, इसी को दे आर टॉकिंग अबाउट इट. हाँ, लाइक दिल्ली, यस. हाँ, तो देखो यहाँ लिखा भी शक्ति स्कीम ब्रिंग्स वुमेन इनटू पब्लिक एंड मेक्स पब्लिक लेस मेल, मतलब दैट इज व्हाट दीस आर द थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड, है ना. तो शक्ति स्कीम इज वन सच इट एंड ऑल. चलो, since we are talking about gender equality, so there is a talk, I mean, which SDG talks about gender equality? Your options are SDG 3, SDG 5, SDG 7, SDG 1. What is the right answer? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. Everyone please press the like button and subscribe to our channel. SDG सस्टेनेबल, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? देखो पहला क्या है, नो पॉवर्टी. दूसरा क्या है, जीरो हंगर. तीसरा क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है ना. क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वालिटी, है ना. 1 2 3 4 5, फिफ्थ वन. सो बी इज द राइट आंसर. यस, प्रिया चवन, बानू, आलिया, इरम शेख. देखो मैंने बताया शुरू का 4-5 याद रखना, कभी कभी यहाँ से हो जाता है. फिर जैसे कि रिड्यूस इन इक्वालिटी, ये वाला, ये भी कभी SDG 10 भी कभी कभी आ जाता है. बट जनरली एटलीस्ट टॉप 5 यहाँ को याद रखना. अभी तक पूछा नहीं है, बट आई हैव सीन इन सम एग्जाम दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम SDG, तो हो सकता है यहाँ भी क्लैट नहीं पूछ दें. ठीक है, ओके. तो सिमिलर क्वेश्चन जैसे आपने अभी बोला भी, किसी बच्चे ने लिखा है दिल्ली में भी ऐसा कुछ. यस, सिमिलर स्कीम इज इन दिल्ली, फ्री बस फॉर वुमेन एंड ऑल. देन पंजाब एंड तमिलनाडु इज देयर. अब उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है, उसको कहते हैं फ्रीबीज. क्या ये फ्रीबीज है? ये भी काफी लंबा चौड़ा डिबेट है, फ्रीबीज वर्सेस नेसेसिटी. कि गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करी है तो फ्री में है, तो क्या फ्री भी आ गया? तो फ्री भी तो एक तरह का इट्स सॉर्ट ऑफ अ ब्राइब. सो वेदर इज इट करेक्ट और नॉट, तो इट्स अ डिफरेंट डिबेट, है ना. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज ये काफी डिबेट में रहा इन द लास्ट 1.5 year. Which of the following talks about bribery to be corrupt practices in elections? Bribery मतलब freebies उसी के अंदर में आता है. Okay. Your options are Constitution,
Section 8 of Representation of People's Act, Section 123, none of the above. Your time starts now. बताइए। हाँ, तो फ्रीबीज में और नेसेसिटी में डिफरेंस होता है, तो उसमें बहुत मतलब डिबेट है, काफी लंबी चौड़ी, है ना। तो जैसे एक्चुअली ये कहा गया है कि फ्रीबीज अगर कोई गवर्नमेंट ये करे कि हम जैसे मान लीजिए लेट्स से आई एम फाइटिंग एन इलेक्शन, आई से कि आई विल गिव दिस फॉर फ्री, सो दिस विल बी एन अनाउंसमेंट ऑफ ब्राइबरी, तो इसको वैसे भी तो देखा सकता है। सो देयर आर टू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, तो उसमें काफी डिबेटेबल है। द राइट आंसर इज एक्चुअली मनु इज राइट, ठीक है, ये वाला सही है। ये वाला में तो मिस्टर राहुल गांधी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड हियर, है ना, बट यहाँ पर 123 में लिखा हुआ है, ठीक है, टॉक्स अबाउट ब्राइबरी। एक्चुअली इसको प्लस सेक्शन 8 कैपिटल ए दोनों मिला करके, ठीक है, सो हियर सिंस 123 इज मेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट इट। करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया गया, ओके। सो एक करप्ट प्रैक्टिस ब्राइबरी है, और भी जैसे इफ यू आर इन्वोकिंग कास्ट, कम्युनल, रिलीजन एंड ऑल, अगर कोई पॉलिटिशियन किसी मजहब या कास्ट की बात कर रहा है इलेक्शन रैली में, दैट इज आल्सो करप्ट प्रैक्टिसेस। सिमिलरली ब्राइबरी, इसके नीचे जाओगे तो मिल जाएगा वो, ठीक है, एनी गवर्नमेंट और ऑफर प्रॉमिस, है ना, कि हम आपको ये देंगे वो देंगे इलेक्शन के बाद। तब इसमें बहुत सारे डिबेट्स होते हैं कि कौन सी चीज फ्रीबी है, कौन सी चीज नेसेसिटी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, सो इट इज सेड दोज हु फेवर इट, दे से कि जैसे एजुकेशन, हेल्थ, दीज आर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो इसी तरह ये भी वुमेन के लिए लेट्स से फ्री बस सर्विस इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑल। तो वो बहुत डिबेट है, हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं, आप समझ ही होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो पब्लिक स्कूल्स एजुकेट चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस दे आर सेइंग इट, मतलब ये बता रहे हैं कि ये सब फ्रीबीज नहीं आएगा। The government schools providing or government hospitals providing services for free, this is not freebie, rather it's the job of the government and all, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डिबेट वगैरह रहता है। The reason why government pay for a school's hospital is like that taxpayer funding achieves better and fairer outcome than private payment and all। तो ये बता रहे हैं कि yes of course taxpayers, the rich taxpayers pays in order to ensure that poor get benefit and all। तो उसमें बहुत डिबेट है, उतना जाना नहीं है, ठीक है। अब देखो, we often criticize कि वुमेन की इक्वालिटी के अगेंस्ट है, कि मतलब मेल जो अगर बस पे चढ़े तो वो पे करे और फीमेल चढ़े वो पे नहीं करे, है ना, कि she can give 0 rupee and let's say the male has to give 10 rupee or 15 rupee whatever it is। तो ये बताया जाएगा कि इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो लेकिन अब आप देखो, यही मैंने पढ़ाया है, आई स्टिल रिमेंबर, कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आप बोलोगे तो जेंडर के बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट मेल, दैट ओके मेल इज सपोज्ड टू पे द फीस वेयर आई मीन द टिकट एंड वेयर एज फीमेल इज नॉट। बट आप देखोगे इसमें डिटेल में यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो कुछ खास वुमेन के लिए कुछ स्पेशल स्कीम बनाई जा सकती है, और गवर्नमेंट ने, डिफरेंट गवर्नमेंट ने बनाया है, तो यहाँ से जस्टिफाइड है, ओके। इनफैक्ट ही हैज आल्सो, द ऑथर हैज आल्सो यूज्ड इट, है ना, स्पेशल प्रोविजन। तो उसके अंदर की यस देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स वेयर एक्चुअली द स्कीम्स आर मेड इन सच अ वे दैट इट फेवर्स द वुमेन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम बनाई जाती है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम एंड ऑल, ओके। सो दैट इज व्हाट, हाँ गुड डिबेटेबल टॉपिक है, यस धनंजय, ये फ्रीबीज हुआ, ये सब हुआ, ये बहुत लंबा डिबेटेबल टॉपिक है, बट यस दीज आर द आर्गुमेंट्स, ओके, यू कैन अग्री और डिसएग्री, इट्स अप टू यू। खैर फिर साइड में चलते हैं, कोर कंफर्ट। कोर मतलब एक्चुअली देयर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड देयर परफॉर्मेंस इज कंपैरेटिवली बेटर। ये मैंने दिखाया था कल, ये वाला, है ना, इंडियाज, दिस इज यस्टरडेज आर्टिकल आई हैड शोन, है ना, कि इंडियाज इन द लास्ट 5 months ये थोड़ा सा इंप्रूव किया है ना, सो यू कैन सी इट हियर। So the output has increased by 8.2% in June 2023 and fastest in the past 5 months। उसी को प्रेज कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर प्रेजिंग इट। तो कौन कौन 8 कोर इंडस्ट्रीज है, गो एंड फाइंड आउट, ओके। सो दे आर टॉकिंग अबाउट इट, है ना। सो स्टील हुआ और अदर सेक्टर्स हुआ, मैंने पढ़ाया ये सब, आता तो 8 कोर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 8 कोर स्ट्रीम, हाँ लाडली स्कीम वगैरह है, बहुत सारे वुमेन प्रो वुमेन स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, बहुत से लोगों ने लिखा है कमेंट में, हाँ। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। इलेक्ट्रिसिटी में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, डिस्पाइट साइक्लोन वगैरह है तो भी इंप्रूवमेंट हुआ है, कोल आउटपुट भी अच्छा हुआ है, इट्स बेटर एंड ऑल, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो इसी को पता होना चाहिए। अब ये आईएम बिल इज अ बोल्ड मूव। अब देखो इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है, इज एक्चुअली ए फॉर्मर प्रोफेसर एट आईएम अहमदाबाद। देखो हम शॉर्ट में बता दे रहे बस। देखो 2017 में आईएम कुछ लॉस लाए गए थे विच एक्चुअली गेव गवर्नमेंट से पावर आईएम्स के पास ज्यादा चला गया था, ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। जो ऑथर लिख रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ। नाउ द ऑथर इज सेइंग कि आईएम्स वे आर नॉट, आई मीन डूइंग इट वेरी गुड, सो एक्चुअली द गवर्नमेंट इज रिवर्सिंग इट बैक, मतलब वापस बिल लेकर के आईएम से वो पावर वापस ले जाया जा रहा है।
एंड ही इज एक्चुअली प्रेजिंग इट कि ये सही डिसीजन है. ओके इतना समझ लो तो आप समझ. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना. देखो इज टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट पास द आईएम एक्ट 2017 में व्हिच ह्यूजली एक्सपैंडेड द ऑटोनॉमी ऑफ आईएम्स. आईएम को काफी ज्यादा पावर वगैरह दे दिया गया. कंटेन एन इंपॉर्टेंट क्लॉज that it required board of governors of IIM to commission on the independent review of institution at least once 3 days and all. तो ये सब चीज को पावर दिया गया था. आपको इतना डिटेल नहीं जानना है. सो बेसिकली आई एम सेइंग कि IIMs were given more power, more autonomy. ठीक है. That is what Mr. T.T. Ram Mohan, former IIM Ahmedabad professor, is writing. 6 years on, very few of the top IIM have done so. मतलब 6 साल 5 से 6 साल हो गया 2017 से लेकर अभी तक. ठीक है. हाँ 2023 कर लो इसको है ना. अभी तक बहुत ज्यादा आईएम्स ने वो सब को जो उनको पावर दिया गया तो उसको यूज नहीं किया. सो बेसिकली ही इज स्लाइटली क्रिटिकल ऑफ दैट एंड दैट इज व्हाई ही इज प्रेजिंग इट कि यस द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट द पावर बैक. तो इट्स अ राइट थिंग है ना. गवर्नमेंट सीक्स टू टेक बैक फ्रॉम आईएम द पावर्स दैट इट हैव गिवन. जो अपना पावर आईएम्स को की ऑटोनॉमी को दिया था वो वापस ले रही है. एंड ही इज बेसिकली ही इज एक्चुअली प्रेजिंग इट. बस इतना जानना उतना डिटेल ही जानना. ठीक है. हाँ ओके हाँ. फिर आईएम 2023 बिल क्या क्या कहता है. क्रिएट्स विजिटर. प्रेसिडेंट तो विजिटर होते हैं. सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं. ठीक है. सो देयर इज वाइस चांसलर एंड चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते हैं. ठीक है. विजिटर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं. स्टेट लेवल पर व्हाट हैपेंस इज वाइस चांसलर इज देयर और चांसलर जो होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के वो गवर्नर होते हैं उस स्टेट के. ठीक है. सब पता होना चाहिए. जस्ट हैव एन आइडिया. हाँ ठीक है. सो ये सब मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह की बात करें. अब इतना डिटेल नहीं जाना है. क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना भी है ऑलरेडी. द कॉन्सेप्ट ऑफ सीबीडीआर मैंने बताया है. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर एंड ऑल दैट द डेवलप्ड कंट्री इज सपोज्ड टू स्पेंड मोर ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज रादर देन द डेवलपिंग कंट्रीज. ये सब मैंने बताया ना कि जो रिच नेशन है उसको ज्यादा खर्चा करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए एंड ऑल. तो क्लाइमेट फाइनेंस क्यों इशू होता है देखो मैं बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डीजल वाली कार है. ये डीजल से सब कुछ चल रहा है. पेट्रोल से चल रहा है. इफ यू आर स्विचिंग इट टू सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी तो उसमें खर्चा ज्यादा होगा. एक्सपेंडिचर विल बी हाई. सो हु विल बियर इट. तो जो रिच कंट्रीज है उसकी रिस्पॉन्स ऐसा कहा जाता है. तो आई मीन द डेवलपिंग नेशन सेज इट इज मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्री टू फर्स्ट चेंज इट. ठीक है. तो जो रिच नेशन है उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन लोगों ने पहले ज्यादा डैमेज किया एनवायरमेंट को. सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर as far as climate financing is concerned. They should be investing more in renewable energy and all. That is what it says. हाँ polluters pay principle you can say. हाँ so इसी के बारे में एक पढ़ लेना. ठीक है ना. होलोसीन क्लाइमेट एनोमलीज. देखो अब क्या होता है ये सब लोग बच्चे देखते ना तो डर जाते हैं. सर होलोसीन व्हाट इज होलोसीन. देखो कुछ नहीं होता है. ज्योग्राफी में ये टर्म्स होता है. इयॉन एरा पीरियड इपॉक इसको कहते हैं. ठीक है. जैसे इयॉन है फिर एरा है पीरियड. ये सब दीज आर एक्चुअली डिफरेंट phases of world's geography. मतलब कितना हजार साल पहले आप देख सकते हो. ये पुराने जमाने का ना प्री कैम्ब्रियन एरा फेरोजोइक एरा है ना. पैलेसिक एरा मेसोजोइक एरा. देखो जोरासिक एरा है ना. इसी में कहते हैं कि वो था डायनासोर एंड ऑल व्हाटएवर. तो अभी हम लोग यहाँ रह रहे हैं. अभी जो है यहाँ इसको जूम करके यहाँ दिखाया गया. ये वाला जो है ये वाला वी आर राइट नाउ हियर होलोसीन एरा में. ठीक है. सो कहते हैं कि वी आर राइट नाउ इन होलोसीन एरा. तो इतना बस पता होना चाहिए. ठीक है. सो अब क्लाइमेट एनोमलीज मतलब क्या एब्रप्टनेस. अब क्या हो रहा है जिस जमाने में हम लोग रह रहे हैं उस जमाने में बहुत उटपटांग चीजें हो रही है ना. सो एब्रप्टनेस मींस कि थिंग्स आर नॉट वेरी फाइन. सो वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग रेनफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल ड्रॉट इज हैपनिंग. वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग ड्रॉट रेनफॉल इज हैपनिंग. जहां बारिश होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है. जहां नहीं होना चाहिए वहां बहुत ज्यादा हो जा रहा है. जहां पे गर्मी पड़ना चाहिए ठंडा पड़ रहा है. जहां पे ठंडा पड़ना चाहिए गर्मी पड़ रहा है. सो दीज आर एनोमलीज एब्रप्टनेस हैपनिंग बिकॉज ऑफ अगेन द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल. So things are actually not happening according to the according to what we are expecting है ना. तो that is what is being talked about. ठीक है. तो इसी पर इसको पढ़ लेना. मतलब इसमें कुछ अब खास नहीं बताने के लिए लेकिन आपको पता है क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दीज अदर थिंग्स तो आप समझ लोगे. हाँ पैनल सबमिट्स रिपोर्ट ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी आफ्टर 6 years. तो पैनल का नाम बताना है. हु इज द चेयरमैन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ दैट. ओके योर ऑप्शंस आर Justice U.G. Lalit Committee, Justice K.G. Balakrishnan, Justice G. Rohini, Justice B.S. Chauhan. Your time starts now. बताइए. सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs. ये एक्चुअली क्या है इसमें क्या होता था कि सी व्हाट हैपेंस इन OBC इज एक्चुअली रिजर्वेशन इज एक्सट्रीमली डिबेटेबल कंट्रोवर्शियल टॉपिक. तो इसमें होता क्या है कि पीपल से कि दोज हु आर रिच और कंपैरेटिवली बेटर इन OBC दे गेट ऑल द बेनिफिट ऑफ ऑल द रिजर्वेशन एंड द पुअर्स आर नॉट एबल टू गेट.
जो ओबीसी में बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली रिच हैं और उसमें कंपैरेटिवली पुअर हैं, तो जो पुअर है उनको नहीं फायदा होता, जो रिच है उन्हीं को फायदा हो जाता है. सो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स. उसके लिए फिर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की बात कही गई. यस, नॉट केजी बालाकृष्णन, इट्स जस्टिस जी रोहिणी. आपको पता था कि लोग गड़बड़ाएंगे यहाँ पे. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गौरी सेठी एंड स्ट्रीमर बॉयज. राइट, ये वाला किसी और चीज के लिए, फाइंड आउट, होमवर्क है. ठीक है, इट्स नॉट केजी बालाकृष्णन, इट्स जस्टिस जी रोहिणी कमीशन. ठीक है, इट हैज समथिंग टू डू विद समथिंग एल्स, और ये होमवर्क है. फाइंड आउट जस्टिस केजी बालाकृष्णन कमिटी हैज बीन सेट अप फॉर व्हाट. ठीक है, हमको पता था कि ये दोनों में आप कंफ्यूज करोगे, and that is why I have given these two options. Go and find out Justice K.G. Balakrishnan committee is for what. I have taught it. ठीक है, so yes, is the right answer. Okay, फिर एक दो चीजें. Indian grants to be used in education, healthcare. देखो एक्चुअली क्या है, India has helped श्रीलंका है ना, बहुत जगह बहुत सारी चीज में, जैसे 75 करोड़ इंडिया हैज गिवन फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड ऑन डेवलपमेंट के लिए, वही सब लिखा हुआ है कि जस्ट गो एंड रीड इट कि व्हाटएवर इंडिया हैज हेल्प्ड द श्रीलंका इन इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना. म्यांमार जनता शेव्स ऑफ 6 years. तो आपको पता होगा कि म्यांमार में मिलिट्री कू हैज हैपेंड एंड ऑंग सान सू की इज इन जेल फॉर 33 years जेल, लेकिन 6 साल कम कर दिया गया. सो नाउ शी विल बी इन जेल फॉर 27 years. 27 साल वो जेल में रहेंगी. So that is what 6 साल कम कर दिया गया, and she is already 78 years old. So if she will come after 27 years, so she will be around 105 if she is alive. तो यही है, just have an idea. थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने होमवर्क भी बताया है. मिलिट्री को, म्यांमार को, which happened on 1st February 2021. Please read about it in detail and all. That is important, very very. Okay. So this is actually, we are providing a 3-day free trial on our app. So download our app, go to CLAT section, and you will see the 3-day free trial. So thank you everyone. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.